Good afternoon viewers and welcome to the science stream of EduSat lectures. Today we have with us Dr. Nimish Kapoor, who is from the Vigyan Prasar Department of Science and Technology. We have been interacting with Dr. Nimish Kapoor for various popular science lectures. Today also we have another burning topic regarding pollution from the plastics. We all are aware of the harmful, hazardous, carcinogenic effects of plastics and the problems of non-degeneration of plastics. In today's lecture, Dr. Nimish Kapoor will be enlightening us about the problem of plastics, the harmful effects on marine environment, regarding all the other types of plastics that could add to the pollutants. Also, he will be telling us about India's preparedness and the research that is going on in remediation of plastic created pollution. So over to Dr. Nimish Kapoor. नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर उन्नति। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन की, और जैसा कि डॉक्टर उन्नति ने बताया कि हिंदुस्तान में हमारे लैब क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं इस पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए। सबसे पहले हम जैसे जानते हैं प्लास्टिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन आवर डेली लाइफ एज ए बेसिक नीड। It produced at a massive scale worldwide, and its production crosses the 150 million tons per year globally. तो बहुत बड़े पैमाने पर विश्व में इसका इस्तेमाल हो रहा है। 2012 का एक डाटा है हमारे पास। ड्यूरिंग द ईयर 2012 280 million tons of plastic was produced globally. Less than half of it was consigned to landfill or recycled. Of the remaining 150 million tons, some may still be in use, the rest litters continents and oceans. ये नेचर में 2013 में इसको पब्लिश किया गया है। हम सब इसको एक वंडर मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक को, और प्लास्टिक के बगैर हम बहुत मुश्किल है कि हम अपने डेली लाइफ की कल्पना कर पाएँ। हम सुबह अगर दूध या ब्रेड लेने जाते हैं तब से लेकर हम अपना जो ब्रश करते हैं उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल है। तो हमारा दिनचर्या से लेके हमारे जीवन में प्लास्टिक बहुत घुल मिल गया है। कैसे, ये हम जानेंगे। प्लास्टिक हैज़ मैनी एडवांटेजेस, बहुत सारे उपयोग हैं प्लास्टिक के। इट इज़ ड्यूरेबल, लाइट, easy to mold, and can be adapted to different user requirement. Once hailed as a wonder material, plastic is now a serious worldwide environmental and health concern, essentially due to its non-biodegradable nature. Plastic have use in all sectors of the economy, including infrastructure, construction, agriculture, consumer goods, and packing. Plastic is a material consisting of any of a wide range of synthetic or semi-synthetic organics that are malleable and can be molded into solid objects of diverse shapes. Plastics are typically organic polymers of high molecular mass, but they often contain other substances. They are usually synthetic, most commonly derived from petrochemicals, but many are partially natural. Plasticity is the general property of all materials that are able to irreversibly deform without breaking, but this occurs to such a degree with this class of moldable polymers that their name is an emphasis on this ability. Why plastic? हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, इसका जवाब यही है कि ड्यू टू देयर रिलेटिवली लो कॉस्ट, सस्ता मिल जाता है प्लास्टिक, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वर्सिटैलिटी एंड imperviousness of water, plastics, and used in an enormous and expanding range of products, from paper clips to spaceships. तो प्लास्टिक का इस्तेमाल लगभग ऐसी कोई हम कहेंगे कि चीज़ नहीं है जहाँ पर ना हो रहा हो। They have already displaced many traditional materials such as wood, stone, horn, and bone, leather, paper, metal, glass, and ceramic in most of their former uses. In developed countries, about a third of plastic is used in packaging and another third in buildings such as piping used in plumbing or vinyl siding.
Other uses include automobiles, up to 20% plastic, furniture and toys. In the developing world, the ratio may be different. For example, reportedly 42% of India's consumption is used in पैकेजिंग। तो बहुत हिंदुस्तान में भी आप देखें 42% से ज़्यादा इसका कंजम्पशन पैकेजिंग में होता है। ये भी दिलचस्प घटना है 1907 में जब साइंटिस्ट लियो बेकलैंड ने न्यूयॉर्क में इसका इन्वेंशन किया और एक फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया गया जिसका नाम उन्होंने अपने नाम के आधार पे बेकेलाइट रखा। और ये लियो बेकलैंड ने कहा है, I was trying to make something really hard, but then I thought I should make something really soft instead that could be molded into different shapes. That was how I came up with the first plastic. I called it Bakelite. तो ये एक इतिहास छोटा सा कि 1907 में प्लास्टिक पहली बार सिंथेसिस हुई। Many chemists contributed to the material science of plastics, including Nobel laureate Hermann Staudinger, who has been called the father of polymer chemistry, and Hermann Mark, known as the father of polymer physics. The success and dominance of plastic starting in the early 20th century led to environmental concerns regarding its slow decomposition rate after being discarded as trash due to its composition of very large molecules. Toward the end of the century, one approach to this problem was met with wide efforts toward recycling. हम ये भी जानते चलें कॉमन प्लास्टिक और उसका इस्तेमाल बहुत बड़ा वैरायटी है। हमारा आप जब देखेंगे कि एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम जिसको छोड़ सकते हैं हम इस्तेमाल ना करें। हम अक्सर प्लास्टिक छोड़ने की बात करते हैं, पॉलीथीन पर बैन की बात की जाती है। ये बहुत नामुमकिन सा लगता है। क्यों? उसका जवाब इन स्लाइड्स में आपको मिलेगा। जो कॉमन प्लास्टिक हैं और उनके इस्तेमाल हैं वो देखें। पॉलिएस्टर जिसे PES कहते हैं, फाइबर्स टेक्सटाइल के तौर पे इस्तेमाल होता है। पॉलीथिलीन, टेरेप्थलीट PET कहते हैं इसको। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बॉटल्स, पीनट बटर जार्स, प्लास्टिक फिल्म, माइक्रोवेवेबल पैकिंग। तो आप देखें पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन PE जो कहलाता है, वाइड रेंज ऑफ inexpensive uses including supermarket bags, plastic bottles, high density polyethylene HDPE जो डिटर्जेंट बॉटल्स हैं, मिल्क जग्स हैं, मोल्डेड प्लास्टिक केसेस हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, plumbing pipes and guttering, shower curtains, windows, frames, floorings, PVDC जो पॉलीविनाइलाइटीन क्लोराइड जो फूड पैकेजिंग में काम आता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LDPE, आउटडोर फर्नीचर, साइडिंग, फ्लोर टाइल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पॉलीप्रोपिलीन PP कहलाता है जो बॉटल कैप्स, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, योगर्ट कंटेनर्स एट्सेट्रा, कार फेंडर्स, बम्पर्स। पॉलीस्ट्रीन्स जो है PS कहलाते हैं, पैकेजिंग फ्रॉम फोम है, ये फूड कंटेनर्स में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक टेबल वेयर में, डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स एट्सेट्रा, CDs और कैसेट बॉक्सेस में इसका इस्तेमाल होता है। हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टीरीन HIPS कहलाता है जो रेफ्रिजरेटर, लाइनर्स, फूड पैकेजिंग, वेंडिंग कप्स। पॉलीएमाइड्स PA जो नैलॉन के फॉर्म में, फाइबर, टूथब्रश ब्रिसल्स, ट्यूबिंग, फिशिंग लाइन, लो स्ट्रेंथ मशीन पार्ट। बहुत सारी आप देख रहे हैं ABS एक्रेलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टेरीन, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट केसेस जैसे कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, ड्रेनेज पाइप। पॉलीथिलीन जो एक्रेलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टीरीन में PE/ABS, ये सिल्परी ब्लेंड ऑफ PE एंड ABS यूज्ड इन लो ड्यूटी ड्राई बियरिंग्स। तो आप देखें हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू कवर किए हुए हैं प्लास्टिक ने। पॉलीकार्बोनेट्स, PC, कॉम्पैक्ट डिस्क, आई ग्लासेस, रॉयड शील्ड्स, सिक्योरिटी विंडोज़, पॉलीकार्बोनेट सीरीन, तो एंड पॉली यूरेथेन्स,
जिसमें कुशनिंग फोम्स है, थर्मल इंसुलेशन फोम्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम चाह कर भी निजात नहीं पा सकते। यानी हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर प्लास्टिक का साम्राज्य है, आधिपत्य है। अब इस समस्या ये हमें कैसे हम इससे दो चार होना पड़ रहा है, हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे ह्यूमन जनरेशन को, हमारे मरीन लाइफ को, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ सोल्यूशन की बात करेंगे। प्लास्टिक डिब्रिस कैन फिजिकली हार्म वाइल्ड लाइफ, मोर ओवर मैनी प्लास्टिक मे बी केमिकली हार्मफुल इन सम context, either because they are themselves potentially toxic or because they absorb other pollutants. आप देखें ये समुद्री इलाका पूरा पटा हुआ है पॉलीथीन और प्लास्टिक की गंदगी से, और एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच डिक्लेयर कर दिया गया है जो आने वाले हमारा न केवल इंसानी सभ्यता, मरीन साइंस, बल्कि इस ब्रह्मांड के लिए एक खतरे की घंटी है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द पैसिफिक ट्रैश vortex is the gyre of marine debris particles in the central North Pacific Ocean. The patch extends over an intermediate area with estimates ranging very widely depending on the degree of plastic concentration used to define the affected area. बहुत खतरे में है हमारा जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है, इंक्लूडिंग फ्लोरा फौना। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो वेस्ट पैसिफिक गायरे एंड ईस्ट पैसिफिक गायरे के बीच का ये एरिया है, और ये कितना बड़ा है ये भी हम आपको बता दें। इसकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, जो लास्ट पॉइंट में जो साफ इसको एस्टिमेट किया गया है 7 लाख से 1,50,00,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये इसकी संभावना अभी तक जताई जा रही है। और द पैच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्शनली हाई रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ pelagic plastics, chemical sludge and other debris that have been trapped by the currents of the North Pacific gyre. Despite its enormous size and density, 4 particles per cubic meter, the patch is not visible from satellite photography, nor is it necessary detectable to casual boaters or divers in the area, as it consists primarily of a small increase in suspended, often macroscopic particles in the upper water column. तो एक बहुत मैं जैसे कहूँगा कि ये चेतावनी हमारा जो परिंदा है, जो चिड़ियाँ हैं, जो जानवर समुद्र के आसपास रह रहे हैं, वो इस प्लास्टिक की चीज़ों को खा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है। सम ऑफ दीज लॉन्ग लास्टिंग प्लास्टिक end up in the stomach of marine birds and animals and their young, including sea turtles and the black-footed albatross. Midway atoll, ये एक द्वीप है, receives substantial amount of marine debris from the patch. Of the 1.5 million Laysan albatrosses, ये एक चिड़िया का नाम है जो आप देख रहे हैं, जो पहले चित्र में जिसका जीवाश्म गवाही दे रहा है। इसके प्लास्टिक इसके पेट में पाए गए हैं इसके मौत के पश्चात, जो प्लास्टिक को खा लेती है। तो इस चिड़िया का भी अस्तित्व संकट में है। Approximately 1/3 of their chicks die and many of those deaths are due to being fed plastic from their parents. 20 tons of plastic debris washes up on Midway every year, with 5 tons of the debris being fed to albatross chicks. तो ये बहुत गंभीर, न केवल ये परिंदा बल्कि और भी जो समुद्र तट के जानवर हैं। जेली फिश है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पॉलीथीन के अंदर समाई हुई जेली फिश है जो मजबूर है पॉलीथीन में रहने के लिए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे उन आदतों का, जिसके कारण ये पॉलीथीन की गंदगी समुद्र में समाती जा रही है। Beside the particles danger to the wildlife on the microscopic level, the floating debris can absorb organic pollutants from seawater, including polychlorinated biphenyls, DDT, and PAH, यानी polyclinic aromatic hydrocarbons. Aside from toxic effects when ingested, some of these are mistaken by the endocrine system as
estradiol, causing hormone disruption in the affected animal. These toxin-containing plastic pieces are also eaten by jellyfish, which are then eaten by larger fish. Many of these fish are then consumed by humans, resulting in their ingestion of toxic chemicals. तो ये बहुत खतरा जो जेली फिश और छोटी मछलियाँ खाती हैं इन टॉक्सिन्स को, जहरीले प्लास्टिक को, और वो बड़ी मछलियों का जब शिकार बनती हैं तो वो बड़ी मछलियों तक खतरा जाता है और ये मानव आबादी तक भी समुद्र की मछलियों या जानवरों के ज़रिए ये खतरा पहुँचता है. Marine plastics also facilitated the spread of invasive species that attach to floating plastic in one region and drift long distances to colonize other ecosystems. On the macroscopic level, the physical size of the plastic kills whales, fish, birds, and turtles, as the animal's digestion cannot break down the plastic that is taking up the space inside their stomachs. A second effect of the macroscopic plastic is to make it much more difficult for animals to detect their normal sources of food. While eating their normal source of food, plastic ingestion can be unavoidable. Research has shown that this plastic marine debris affects at least 267 species worldwide, जो एक खतरे की घंटी बजा रहा है. प्लास्टिक चैलेंज इन मरीन लाइफ, आप देख सकते हैं समुद्र एक प्लास्टिक पॉलीथीन का कचरा घर बनता जा रहा है और समुद्र का जीवन खतरे में है. न केवल समुद्र, अगर हम कैटल्स की बात करें, हम और जानवरों की बात करें, द प्लास्टिक बैग कॉज द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स एवरी ईयर. Globally, the extremely slow decomposition rate of plastic bags leaves them around for untold years. और इसको न केवल इसकी वजह से बल्कि इसको खाने से भी, जब ये पेट के अंदर जाता है तो भी ये एक दिक्कत करता है उस जानवर के. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी सेड दैट वी आर सिटिंग ऑन ए प्लास्टिक टाइम बॉम्ब. ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य आ भी चुका है. और आप देखें जो गाय जिस पर हिंदुस्तान में कुछ समय से जिसके नाम पर कालिक पोती जा रही है, गाय के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. गाय को हम माता भी मानते हैं, लेकिन यही गाय आप देखें कि हमारे कचरे घर से पॉलीथीन खा रही है, प्लास्टिक खा रही है. इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हम हैं? हमें शायद अपने आप से ये सवाल करना होगा, अपनी उन आदतों में सुधार करना होगा. जब हम कचरा अपने घर से बाहर फेंकते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसमें पॉलीथीन और प्लास्टिक आते हैं, उन्हें हम अलग फेंकें और उस पशु आबादी से दूर फेंकें जहां वो सीधे कचरे की ट्रॉली में लद कर कहीं दूर चला जाए, ताकि वो जो जानवर आपके मोहल्ले में आसपास घूमते हैं कचरे के डिब्बे के आसपास, वो उनको ना खा पाएँ और अपनी ज़िंदगी ख़त्म उनकी ना हो पाए. तो ये कौन करेगा, ये हमें भी सोचना है और आपको भी सोचना है. प्लास्टिक डेंजर ऑफ बर्ड्स, आप देखें ये तस्वीर जिसमें ये परिंदा उस प्लास्टिक की गिरफ्त में है, जिसमें ज़्यादा ना कहना ही काफ़ी है क्योंकि ये खुद ब खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं. ये समुद्र तट का पक्षी है, ये दोनों ही, और ये दोनों की त्रासदी हम देख रहे हैं. क्या समस्याएं हैं, इस पर भी हम गौर फरमाएं. प्लास्टिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक्स. Conventional plastics have been associated with reproductive problems in both wildlife and humans. Studies have shown a decline in human sperm count and quality genital abnormalities and a rise in the incidence of breast cancer. Dioxin, a highly carcinogenic and toxic byproduct of the manufacturing process of plastics, is one of the chemicals believed to be passed on through breast milk to the nursing infant. तो ये एक गंभीर खतरे उस प्लास्टिक के. बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स की हम बात करें, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स स्पेशली PVC रिलीजेस दिस डायोक्सिन एंड ऑल्सो फ्यूरॉन इनटू द एटमॉस्फेयर. फ्यूरॉन एक कार्सिनोजन है, एक कैंसर का कारण है. फ्यूरॉन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर ट्यूमर्स एंड बाइल डक्ट ट्यूमर्स. ये सीधे सीधे कैंसर से जुड़ी चीज़ें जो हम करते हैं. और हालांकि हमारे कोर्ट, हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस पर सख्त हुआ है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये
5,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भी डिक्लेयर किया है कि अगर हम कोई गार्बेज या प्लास्टिक या टायर ट्यूब खुले में जलाते हैं तो ये गैरकानूनी है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना। तो शायद इस सख्ती के बाद, इस नियमों के बाद कुछ कड़ाई से हम उनका पालन कर पाएँ। और ये भी आपको बता दें, इन टायर ट्यूब और पॉलीथीन को जलाने से हर जाड़े में खबर आती है, कभी अंगीठी जलती रह जाती है, कभी ये टायर ट्यूब जलाए जाते हैं घरों में, खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं और घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स की मौत हो जाती है। तो ये भी एक आम खबर है जो हर सर्दी के मौसम में हमें सुनाई पड़ती है। प्लास्टिक disturbs the soil. Plastic disturbs the soil microbe activity and once ingested can kill animals. Plastic bags can also contaminate foodstuffs due to leaching of toxic dyes and transfer of pathogens. Careless disposal of plastic bags chokes drains, blocks the porosity of soil and cause problem for ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो आप देखें एक छोटा सा प्लास्टिक किस तरह से हमारा पूरा सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, वो चाहे सॉइल एक्टिविटीज़ की बात हो, सॉइल की पोरोसिटी को ब्लॉक करने की बात हो, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज की बात हो, परिंदों और हमारे कैटल्स के ज़िंदगी की बात हो, मरीन लाइफ की बात हो, वाइल्ड लाइफ की बात हो, इंसानी ज़िंदगी की बात हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस एक छोटे से प्लास्टिक और पॉलीथीन से जुड़ी हुई हैं जो सामने आ रही हैं। Unnecessary use of plastic bags. Our planet is becoming increasingly contaminated by plastic pollution and by our unnecessary use of plastic carry bags. Big black bin liners, plastic carrier bags carrying advertising logos, clear sandwich bags, vegetable bags, and a variety of other forms used to carry our daily food items and other items are all polluting our environment. तो हम बहुत सारा गैर ज़रूरी बैग्स इस्तेमाल करते हैं और हम कहीं भी शोरूम में जाते हैं तो वो बैग हमें टिका दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं हम खुद एक बैग लेके जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर हम करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी आदतों में सुधार करेंगे और अपनी चीज़ों में बदलाव करेंगे और कहीं ना कहीं हम एक कंट्रीब्यूशन देंगे अपना टुवर्ड्स ए पॉलीथीन प्लास्टिक फ्री नेशन। लेकिन ये भी संभव है। उसके अलावा और भी खतरे हैं जो हम आपको बताते हैं। ये एक बहुत आम दृश्य है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक गरम चाय एक पन्नी में पॉलीथीन में डाली जा रही है और उसके बाद ये कुछ दूर तक जाएगी और प्लास्टिक के कपों में लौट के पी ली जाएगी। ये क्लियर है, हमारे साइंटिस्ट बता चुके हैं। हॉट फूड इन प्लास्टिक बैग्स कैन कॉज कैंसर। द प्लास्टिक बैग्स यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आर वेरी डेंजरस एज दे कंटेन पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन। ये सारी चीज़ें कैंसर रोग को निमंत्रण देती हैं और ख़ास तौर पे हम जब गर्म पदार्थ, गर्म खाना या चाय पन्नी में डालते हैं तो ये एक्टिविटी और कई गुना बढ़ जाती है। If a person eats food items carried in plastic bags for a long period, he or she is very likely to get serious health problems. Thousands of patients have been affected by polyvinyl chloride. आप कैंसर सर्जन से बात करें और ऐसे जगहों पे जाएं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लर्नर्स हैं, तो हॉस्पिटल्स में जाके पता करें कि कितने मरीज ऐसे हैं जिनको इस तरह के कैंसर से ग्रस्त होकर वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। जो ख़ास तौर पर गर्म पदार्थ जब हम रखते हैं पॉलीथीन में या प्लास्टिक में, तो उसकी वजह से जो कैंसर हो रहे हैं, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ देश में और दुनिया में हो रही हैं। When hot food is packed in plastic, chemical exchange between the plastic and food is maximized by high temperature and the nature of food. Certain plastic bags may cause chemical filtration into the food. Those chemicals include styrene and bisphenol, which can cause cancer, heart diseases, and reproductive problems. प्लास्टिक पोल्यूशन, अभी तक हमने जो बात की प्लास्टिक पोल्यूशन के इर्द गिर्द ही की। अब प्लास्टिक पोल्यूशन की हम कुछ सीधी बात भी कर लेते हैं। इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ एस्टिमेटेड दैट 60 cities across India cumulatively churn out about 15 million kilogram of plastics waste every day, or enough of waste polythene of the type used in shopping bags to fill a tower the size of the Qutub Minar every second day. जी हाँ, इतनी प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में।
हमारे 60 शहरों में जो कुतुब मीनार के बराबर वो ऊंचाई की मंजिल बन जाएगी हर दूसरे दिन. मच ऑफ द कंट्रीज प्लास्टिक वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन लैंडफिल्स डिस्पाइट एफर्ट्स टू रीयूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट किल्न्स. वेस्ट प्लास्टिक की हम बात करें, वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, हाउ बिग इज़ द प्लास्टिक प्रॉब्लम. प्लास्टिक जनरेटेड इन 2012 का आंकड़ा मिलियन टन्स में 130 मिलियन टन जो है वो रिसाइकल्ड हुआ और 150 लीटर्ड एंड अनकलेक्टेड. और इसी 150 टन का खतरा जो हमारा अभी हमने आपको जो दृश्य दिखाए थे मरीन इन्वायरमेंट के ख़ास तौर पे, और उसके अलावा हमारे कैटल्स और जो कचरे घरों में पॉलीथीन, ये सब एक बहुत बड़ा खतरे की तरफ इशारा कर रहा है. ये 150 मिलियन टन पॉलीथीन जिसका हमें कुछ निस्तारण करना ज़रूरी है. वेस्ट प्लास्टिक्स इंडियन सिनेरियो क्या है? वेस्ट प्लास्टिक जनरेटेड एज पार्ट ऑफ MSW इन 60 मेजर सिटीज़. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के तौर पर ये 60 मुख्य शहरों में ये जनरेट होता है. इस आंकड़े के अनुसार ये करीब 15,500 टन पर डे या 56 लाख टन पर एनम, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है. वेस्ट प्लास्टिक्स एडिड एवरी डे विच लाई लिटर्ड एंड अनकलेक्टेड, इट इज़ 6137 tons per day, assuming 60% of plastic are recycled. Waste plastics generated in 4 metros tons per day. ये कितना है आप देखेंगे, दिल्ली में टोटल वेस्ट प्लास्टिक जो जनरेट होता है 689.5 टन्स पर डे, जिसमें से अनकलेक्टेड और लिटर्ड वेस्ट प्लास्टिक है जो 275.5 टन्स पर डे. उसी तरह से मुंबई में 408 और 163 जो है वो अनकलेक्टेड है. कोलकाता में टोटल वेस्ट प्लास्टिक का जनरेटेड है 425.7 टन पर डे और जिसमें अनकलेक्टेड और डिटर्ड वेस्ट प्लास्टिक है 170. इसी तरह से चेन्नई में 429.4 और 171.6. ये सोर्स है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2013 टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया. इस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन की हम बात करें, जो वेस्ट जो प्लास्टिक है उसके जो सोर्स हैं, प्री कंज्यूमर वेस्ट है वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, प्रोसेस इंडस्ट्री है, और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, कंज्यूमर एंड डिमोलिशन वेस्ट है, वेस्ट इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल्स है. और अब ये और भी बढ़ने जा रहा है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ख़ासतौर पर दिल्ली और आसपास NCR में एक गाड़ी की लाइफ जो है वो पेट्रोल से चलने वाली, उसकी लाइफ 15 साल कर दी है, व्हीकल्स की लाइफ. और कंपोजिशन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, थर्मोप्लास्ट रिसाइक्लेबल और थर्मो सेट्स नॉन रिसाइक्लेबल जो 20% है और थर्मोप्लास्ट 80% है. 80% वेस्ट प्लास्टिक्स आर रिसाइक्लेबल और polyolefins constitute 65% of total plastic waste from municipal solid waste. ये एक छोटा सा आंकड़ा समझाने के लिए. अब आप देखें जो लीस्ट प्रेफर्ड से मोस्ट प्रेफर्ड की तरफ हम जाते हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली की हम बात करते हैं, हम रीयूज़ और रिसाइकिल की बात करते हैं. और हैज़ार्डस टू इन्वायरमेंट क्या है? वो लैंड फिलिंग है, एनर्जी रिकवरी है, जिसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस बनती हैं और कचरा और बढ़ता है काम होने के बजाय. तो प्रेफर जो है वो उसका रिसाइकिल है और रीयूज़ है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्लास्टिक, अभी तक द प्रेजेंट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम लैंडफिल कर देते हैं, प्लास्टिक को जलाकर ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, हम उसको लैंडफिलिंग कर देते हैं या इंसिनरेशन करते हैं. उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में जो टॉक्सिक गैसेस है उनका इमिशन होता है और हमें ज़्यादा बर्बादी देखने को मिलती है. Hence, there is a strong need to find a viable solution for utilization of these waste plastics. Conversion of plastic waste to value-added product. Scientists suggest a solution to avoid plastic problem, and it is conversion of plastic waste to value-added products. As plastics are high energy macromolecules and processed plastics also contain foreign materials like fillers, antioxidants, and additives. A suitable
process is required for conversion. The process of conversion should be environment friendly, simple and suitable for small as well as large scale units. Since last decade, researches have been undertaken worldwide to develop process for value addition to waste plastics. There have been numerous claims by different research groups claiming to have developed processes to obtain fuel like products from waste plastics, waste tires, etc. However, most of these processes are producing furnace oil or a type of plastic crude oil only, which does not meet the standard transportation fuel specifications and hence have failed to gain wide acceptability. जी, और अब हिंदुस्तान में क्या हुआ है हम आपको बता दें. Plastic waste to wealth. India will soon become one of the very few countries in the world to convert plastic and polythene waste into high-grade petrol and diesel. जी हाँ, हिंदुस्तान में अब प्लास्टिक के वेस्ट से हाई ग्रेड पेट्रोल और डीजल हमें मिलने जा रहा है और ये करके दिखाया है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की लैब ने, जो एक CSIR की प्रतिष्ठित लैब है, और ये काम उन्होंने कैसे किया और इसमें हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो भी हम आपको गिनाएंगे. इंडियन researchers have developed an innovative method to reuse discarded plastic bags by transforming them into fuel to power car engines, and Indian researchers and innovators also constructing roads from waste plastic and polythene. Waste plastic into fuel. What are the technologies which convert waste plastic into fuel? What all these innovations and development takes, where are these innovations takes place, and what is the contribution of this technology which convert waste to wealth? बहुत सारे ऐसे सवाल आपके दिमाग में कौंध रहे होंगे जिनके जवाब हम आपको अब देने वाले हैं. Fuel from plastic, yes. Indian scientists achieved this milestone to convert plastic waste into high-grade petrol and diesel. This technology, developed by researchers at the Indian Institute of Petroleum Dehradun and National Institute of Technology Rourkela, it has catapulted India into the league of Germany, Japan and the US, the only other countries to have access to this green technology at present. जी हाँ, जर्मनी, जापान और US के बाद हिंदुस्तान चौथा एक ऐसा देश है जहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट से एक ऐसा फ्यूल तैयार किया जा रहा है और जिसका बड़े स्केल पर एक प्रोडक्शन होने वाला है, जो आपका वाहन व्हीकल्स चला सकता है, आपके घर में LPG सप्लाई कर सकता है, डीजल पेट्रोल आपको दे सकता है. जी हाँ, ये हुआ है और ये अचीवमेंट है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून का, वहाँ के वैज्ञानिकों का, जो हाल के कुछ वर्षों में सामने आया है. वेस्ट प्लास्टिक टू फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स. तो इसका मकसद यही है टू डेवलप ए फुल्ली फिजिबल प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट प्लास्टिक टू वैल्यू एडिड हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स गैसोलीन, डीजल एंड एरोमेटिक्स. इसके फीचर्स क्या हैं ये भी आप देख लें. द प्रोसेस इज कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज नो टॉक्सिक सब्सटेंसेज आर इवॉल्व्ड और लेफ्ट ओवर. द प्रोसेस हैज़ द पोटेंशियल ऑफ augmenting the high-value petroleum products as well as providing an environmentally sound method for their disposal. Adoption of these processes can help in keeping the urban and semi-urban areas free from plastics as well as generation of employment and improvement in economic status of lower strata of society. जी हाँ, ये सारी चीज़ें अब हकीकत बनने जा रही हैं. फ्यूल फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट. जिस तरह से आप देखें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, ये डिवाइस बनाई गई है देहरादून के इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने, और जो सीधा प्लास्टिक से फ्यूल जनरेशन कर रहा है. न्यूली डेवलप्ड फ्यूल बाय IIP. ये क्या है ये भी जान लेते हैं. Indian Institute of Petroleum has developed a unique process by which waste plastic can be converted to either gasoline or diesel or aromatics along with simultaneous production of LPG. 1 kilogram of clean waste polyethylene can produce 500 to 800 milliliter of automotive grade gasoline or aromatics, which is rich in petrochemical feedstocks. The process is completely environment friendly as no toxic substances are evolved or left over. The diesel produced through this technology will be of high quality due to the almost nil sulfur content. This high quality fuel meets Euro 3 and Euro 5 standards
and will allow vehicles to run for at least 2 kilometers more per liter as compared to regular fuel. जी हाँ, जो ईंधन देहरादून की प्रयोगशाला बनाने जा रही है उसमें आपका वाहन 2 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ेगा बनस्पत जो आपका रेगुलर फ्यूल है उसके मुकाबले. द न्यूली डेवलप्ड फ्यूल कैन ऑल्सो बी मिक्सड विद ऑर्डनरी फ्यूल एंड इज बिलीव टू हैव बेटर ल्यूब्रिसिटी एंड कंबशन क्वालिटी दैन रेगुलर लो सल्फर फ्यूल. तो एक बहुत नायाब एक्सपेरिमेंट हम जिसे कहेंगे, जो पॉलीथीन, जो प्लास्टिक इतने सारे खतरों का सबब बन रहा है. जैसा कि आपने देखा, अभी हमने चर्चा की, इस पॉलीथीन और प्लास्टिक के पॉल्यूशन को हम किस तरह से एक नायाब तोहफा हम इसे कहेंगे जो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी हमें मिलने जा रही है. वेस्ट प्लास्टिक यूनिट एट आईआईपी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून की एक वेस्ट प्लास्टिक यूनिट है जो काम कर रही है डीजल, पेट्रोल और एलपीजी बनाने के लिए. कैपेसिटी बैच 3 to 5 kg, कंटिन्यूस 0.5 to 1 kg पर आवर इसका काम करने का ये कैपेसिटी है. और ये पूरी तरह से कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और ऑनलाइन लॉगिंग ऑफ डाटा इसमें है और एनर्जी मीटरिंग डिवाइस है और पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है. CSIR IIP गेल टेक्नोलॉजी गेल के साथ मिलकर इसको बनाया गया है. ऑप्शन 1, एक आप देखें 1 किलोग्राम जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे गैसोलीन बनता है 700 ml प्लस एलपीजी बनता है. अगर हम इससे पेट्रोकेमिकल बनाना चाहें तो वो 500 ml है और उसके अलावा एलपीजी है, और डीजल 850 ml है और एलपीजी है. यानी 1 किलोग्राम जो प्लास्टिक है जिसको अभी तक कबाड़ी वाला ख़रीदता था 10 या 12 रुपए पर केजी, अब उससे हमें जो 70 रुपये और 80 रुपये लीटर जो पेट्रोल है वो मिलने जा रहा है. जो रसोई गैस हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं 400-500 रुपये देकर, जो सिलेंडर हम लेते हैं वो हमें मिलने जा रही है. जो वाहन डीजल से चलते हैं वो डीजल हमें मिलने जा रहा है. एक नायाब क्रांतिकारी ये स्टेप है और जो भविष्य में अगर हम इसको और बड़े पैमाने पर जैसे कि प्रयास हो रहे हैं तो एक बहुत हद तक जो फ्यूल की आत्मनिर्भरता है वो देश में बनेगी और हम बाहर से के मुकाबले हिंदुस्तान में फ्यूल अपना बना पाएंगे. बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्या लाभ है इस टेक्नोलॉजी से, ये भी सुन लें. द प्रोसेस हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ऑगमेंटिंग the high value petroleum product as well as providing an environmentally sound method for their disposal. Adoption of these processes can help in keeping the urban and semi-urban areas free from plastics as well as generation of employment and improvement in economic status of lower strata of society like rack pickers etc. thereby becoming a boon to the society. Rack pickers और जो हमारा कबाड़ी वाला भाई जो प्लास्टिक और पन्नियाँ इकट्ठा करके अब सीधे उस इंडस्ट्री को बेचेगा जो फ्यूल बना रहे हैं. तो एक तरह से हम इस पॉलीथीन पॉल्यूशन से भी निजात पा पाएंगे और जो फ्यूल के महंगे दाम हैं उस पर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे. द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कैन प्रोसेस पॉलीथिलीन एंड polypropylene which account for about 60% of plastic consumed into fuel. About the technology, क्या है ये टेक्नोलॉजी, ये भी जान लेते हैं. साइंटिस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम began their experiment about 11 years ago with tabletop glass apparatus, then scaled it up to a 10 kg per day plant and began talking with the railways about the 2 years ago. CSIR's Indian Institute of Petroleum in collaboration with GAIL India Limited has started the laboratory scale research work on valorization of waste plastic in 2006. The work involved screening and development of catalyst and process for converting waste plastics from different sources into value-added products. Solution of plastic pollution. आप सोचें, जो कचरा हम रेलवे स्टेशन से लेकर अपने घर के बाहर जो हमारा मोहल्ले में जो कूड़ेदान होता है वहाँ, और जैसे कि 150 टन प्लास्टिक की बात हमने की पूरे दुनिया भर में ये कचरा, तो अगर हम इससे फ्यूल बनाएंगे तो बात हमें लगता है कि आम के आम और गुठलियों की दाम की यहाँ पे हो रही है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन डेवलपिंग इन नोवेल process by which waste plastics can be converted exclusively into any one of the product like gasoline or diesel or aromatics along with simultaneous production of liquefied petroleum gas LPG. जी हाँ, novelty of this indigenous technology is that the process involved is completely environment friendly as no toxic gases are evolved.
The residue obtained is dependent upon the fillers and impurities in the waste plastics and could be as low as less than 0.1% in the case of clean plastics. It is a great achievement of Indian science which opens a door for solution of plastic pollution. This technology provides us exclusive production of gasoline, diesel or aromatic along with LPG. New fuel will cost rupees 30 to rupees 40 per liter. Rising petrol and diesel prices have been everyone's misery, and they are only expected to rise in the future with the increasing number of private vehicles. Apart from that, huge piles of non-biodegradable waste is a major problem for a long time. But thanks to this incredible development, both the issues will be getting addressed at the same time. The current prices of petrol range between rupees 70 to rupees 80 per liter. The team from Indian Institute of Petroleum claims that this new fuel will cost rupees 30 to 40 per liter, inclusive of the cost of plant, operations, manpower and land. ये बहुत बड़ी बात है. अभी तक जिस पेट्रोल की कीमत हम चुका रहे हैं 70 से 80 रुपए, इस टेक्नोलॉजी को बनने के बाद हमें 30 से 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलेगा, फ्यूल मिलेगा, और इस 30 या 40 रुपए में प्लांट, ऑपरेशन, मैन पावर और ज़मीन जहाँ पे ये बनाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, उन सब की कॉस्ट शामिल है, कैपिटल कॉस्ट भी इसमें मिली हुई है. तो एक बहुत नायाब, एक बहुत मुझे लगता है लंबी छलांग है ये हमारे साइंस की रिसर्च में. और ये प्लांट जिस दिन लग जाता है और ये फ्यूल जिस दिन मास प्रोडक्शन इसका होने लगता है, तो वो दिन वाकई एक हिंदुस्तान के विज्ञान के इतिहास में एक नायाब दिन होगा, एक यादगार दिन होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे. इंडिया generates 56 lakh tons of plastic waste every year. 56 लाख 56 लाख टन्स पर ईयर इंडिया में हम इतना प्लास्टिक वेस्ट हर साल करते हैं. और सोचें अगर ये 56 लाख टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हम अगर इसको फ्यूल जनरेशन करते हैं इससे, तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है. हैंडलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैज़ बीन ए कॉन्स्टेंट चैलेंज इन द कंट्री. As per Central Pollution Control Board, India generates 56 lakh tons of plastic waste every year. If the recently developed technology by Indian Institute of Petroleum is commercially implemented in a proper manner, it can address the country's problem of rising hazardous waste to great extent. National award भी मिला है इस टेक्नोलॉजी को. The process has the potential to solve the problem of waste plastics disposal in an economical and environmental friendly way. In recognition of development of this technology, Indian Institute of Petroleum has been awarded as a winner of the National Awards for Technology Innovation 2012-13 in the category of Innovation in Polymer Waste Management and Recycling Technology by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. The process, after being developed at the laboratory scale, has been successfully revalidated at the continuous bench scale unit. 7 to 10 kg per day and 1 ton per day demo plant is being set up along with GAIL India Limited at Dehradun. The pilot plant is likely to be commissioned in 2016. तो एक बहुत तेज़ी से कदम बढ़ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के, और 2016 तक एक प्लांट कमीशनिंग की बात हो रही है, पायलट प्लांट कमीशन की बात हो रही है, और आने वाले मुझे लगता है कि 5-10 बरस में ये टेक्नोलॉजी पूरे शेप में होगी. Indian Railways is mulling a plan to turn waste plastic into diesel. जी हाँ, ये भी बहुत काबिल गौर बात है. भारतीय रेल जिसमें लाखों की आबादी रोज़ाना सफ़र करती है और प्लास्टिक की बोतलें हैं, बोतलों के ढक्कन से लेके बहुत सारे प्लास्टिक के बेकार चीज़ें हम ट्रेन की पटरियों और स्टेशन पर फेंकते हैं. अगर ये सारा प्लास्टिक स्टेशनों से जमा होकर और हिंदुस्तान के सारे स्टेशनों से जमा होकर इन प्लांट्स में पहुंचाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत नायाब चीज़ होगी. इंडियन रेलवेज हैज़ शोन इंटरेस्ट. जी हाँ, भारतीय रेल ने इंटरेस्ट भी शो किया है, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अनाउंसमेंट किया है कि भारतीय रेल से वो हाथ मिलाने जा रहे हैं, और उसके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ये प्लांट लगेगा उसमें भारतीय रेल
जितने भी स्टेशन हैं सभी स्टेशनों में जो कचरा है प्लास्टिक का, वो जिसमें प्लास्टिक की बोतलें भी हैं, ढक्कन भी हैं, ये सारा उस प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। Indian Railways has shown interest for adopting this technology for running their diesel locomotives and is planning to put up a plant based on this technology. Indian Railways is building a plant to turn waste plastic bags, bottles and cups into diesel through a waste to wealth technology developed by Indian Institute of Petroleum, Dehradun. Union Science and Technology Minister Dr. Harshvardhan announced the railways plan recently to set up plants to produce diesel to run trains through the technology that can turn 1,000 kilogram plastic waste into 800 liters of high quality diesel. तो ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम। This technology has the capability to convert broken buckets, mugs, bottle caps and other polythenes product into cleanest grade diesel. The Railway Ministry estimates that the nation's vast fleet of locomotives use up to over 2 billion liters of diesel every year, for which the bill is over rupees 1,500 crores. Indian Railways is initially examining the feasibility of setting up 3 plants to process 1,000 kg plastic a day, primarily to manage the internal plastic waste generation by the passengers. ये बहुत अपने आप में क्रांतिकारी कदम, जिसमें कि 2 मिनिस्ट्रीज साथ में काम कर रही हैं। एक मिनिस्ट्री रेलवे मंत्रालय जो प्लास्टिक के पोल्यूशन से दो चार है, वहाँ के स्टेशंस, वहाँ के रेल की पटरियाँ, और दूसरी मिनिस्ट्री जो प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की बात कर रही है। तो एक बहुत अच्छा कदम जो 2 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर उठाया है। मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट, ये बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन की प्रेस रिलीज़ 2013 की, जिसमें एनवायरनमेंट कमिश्नर जेनेस पी ने ये बात की है। मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट इज़ ए मेजर चैलेंज इन टर्म्स ऑफ environmental protection, but it's also a huge opportunity for resource efficiency. In a circular economy, when high recycling rates offer solutions to material scarcity, I believe plastic has a future. I invite all stakeholders to participate in this process of reflection on how to make plastic part of the solution rather than the problem. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन की तलाश यूरोपियन यूनियन से गुहार लगाई गई है सारे स्टेक होल्डर्स की कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर चिंतन करें, इसको प्लास्टिक को ख़त्म ना करें, प्लास्टिक पर बैन अवश्य लगाएं, लेकिन इसके एक प्रॉपर सॉल्यूशन की बात करें। तो आज वैश्विक मंचों पर इसके समाधान की बात हो रही है और हिंदुस्तान की जो प्रयोगशाला है डॉक्टर उन्नति, उसने बहुत नायाब मैं कहूँगा कि ये स्टेप उठाया है, जो एक रिसर्च का, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाने की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आज प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अपने जीवन से हटा तो नहीं सकते, लेकिन जो हमने कैटल्स की बात की, जो अगर हम जहाँ रहते हैं वो इलाका अगर समुद्र से दूर है या हम समुद्र तटीय इलाकों में रहते हैं, दोनों के जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो चाहे पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी को पॉलीथीन से आघात पहुंचा है और पॉलीथीन से उनका जीवन खतरे में है। जो मैं चर्चा कर रहा था, जिस गाय को हम पूजते हैं और उसको हम माता का दर्जा देते हैं, उस गाय के पेट से आप कभी वेटनरी डॉक्टर के पास जाएं और ऑपरेशन के दौरान एक गाय के पेट से आप देखेंगे कि ये 17 किलो और 30 किलो पॉलीथीन निकाली जाती है और उसकी ज़िंदगी इस दौरान ख़त्म भी हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो न केवल हमारे जल थल के जो परिंदे और जानवर हैं उनके लिए है। तो बहुत आवश्यक है कि हम अपनी आदतों में बदलाव करें और ख़ास तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप लर्नर्स हैं, अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, अपने प्रोजेक्ट में आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। आप विज़िट करें हमारा देहरादून में जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, वहाँ की साइंटिस्ट से जाके बात करें, इस टेक्नोलॉजी पर बात करें और क्या मैकेनिज़्म वो अपना रहे हैं, किस तरह से देश के कचरा, घरों से कचरा उस प्रोसेसिंग प्लांट में पहुँचाया जाएगा, क्या मैकेनिज़्म है, क्या प्रणालियाँ हैं, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे हम
वेस्ट प्लास्टिक से हम फ्यूल बनाएंगे, उसको एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे स्टूडेंट के सामने कि वो जाकर इस रिसर्च का भागीदार बने, अपने प्रोजेक्ट बनाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। हम एज ए कंज्यूमर बाज़ार निकलते हैं तो खाली हाथ निकलते हैं, हमारे पास थैला नहीं होता है और हम पॉलीथीन के आदी हो चुके हैं। एक ये भी अपने आप में पूरा एक सर्वे का विषय है, एक रिसर्च का विषय है कि आखिर ये जो पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन वाली जो मानसिकता है वो कब ख़त्म हो पाएगी। और उस पॉलीथीन में हम जब सामान लाते हैं और वो पॉलीथीन को कचरे के साथ हम फेंकते हैं तो वो पॉलीथीन कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ का सफ़र तय करती है, इस पर एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट हमारे स्टूडेंट बना सकते हैं इस पे। और ख़ास तौर पर जो पॉलीथीन के रिसाइकलिंग प्लांट हैं वहाँ अगर आप विज़िट करें, मुझे याद है एक मैं घटना यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय पहले एक फ़िल्म बनाने के लिए हम गए थे और अपना कैमरा क्रू के साथ में, जहाँ पर पॉलीथीन प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा कार्बन कार्बन और कार्बन, सिवाय कार्बन के वहाँ कुछ भी नहीं था। प्लास्टिक के पॉलीथीन के पहाड़ थे, उन पहाड़ों के बीच में एक छोटे से कमरे में एक रिसाइकलिंग प्लांट रखा हुआ था, जिसमें एक सिरे से पॉलीथीन उसके अंदर जा रही थी और दूसरे सिरे से गर्म होकर वो उसका जो पॉलीविनाइल उसका लुगदी जो है वो काले रंग की बाहर आ रही थी और सिर्फ कार्बन के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। और इसको जो काम को अंजाम दे रहे थे वो लोग, उनमें 100% ट्यूमर, कैंसर और उनको लंग्स की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ, उनके सांस के नली की बीमारियाँ इत्यादि भी हो रही थीं उसी समय पर। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ में इन जगहों को विज़िट करें और हमारे जो गवर्नमेंट के कानून बने हैं कि किस तरह से हम जो रिसाइकिल प्लांट लगाते हैं तो वहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के साथ साथ क्या हम एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इस पर भी जो कानून बने हैं वो कितने इम्प्लीमेंटेशन उनका हो पा रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रोजेक्ट में, अपने रिसर्च में, सर्वेस में चेक करें। और सबसे बड़ी बात, जो रैक पिकर्स, जो पॉलीथीन को रिसाइकिल कर रहे हैं, जो परिवार, जो बस्तियां, उनमें जाकर हम चेक करें कि उनमें क्या रोग हैं, क्या डिजीज़ हैं, क्या यही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन है, या हमारे जो देहरादून में जो बात हो रही है एक ऐसे रिसाइकलिंग प्लांट की जहां पर वेस्ट प्लास्टिक से वहाँ फ्यूल बन रहा है, क्या ये जागरूकता ग्रास रूट लेवल तक हम पहुँचा पाए हैं, रैक पिकर्स तक हम ये बात बता पाए हैं कि उस पॉलीथीन को वो जो इकट्ठा करते हैं उससे अब पेट्रोल और एलपीजी और डीजल बनने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में जब प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएंगे और जब हमारे रेलवे स्टेशनों का कचरा हमारे प्रोसेसिंग प्लांट में पहुँचाया जाने लगेगा, तब बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे हमारे रैक पिकर्स के लिए, हमारे उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए, उनके उन तमाम परिवारों के लिए जो आज कैंसर और ट्यूमर के खतरे झेल रहे हैं, वो एक अच्छा बेहतर जीवन बिता पाएंगे, एक अच्छा आमदनी का जरिया उनको मिल पाएगा। तो ये सारे रिसर्चेस के साथ साथ रिसर्च की आवश्यकता इस बात पर भी है कि आज जो टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो अध्ययन कर रहा है प्लास्टिक के पोल्यूशन की, कि प्लास्टिक में जो हमने गर्म चाय की बात की, गर्म खाने की बात की, घटिया किस्म के प्लास्टिक उपयोग न करने की बात की। आप देखें फुटपाथ पर जो घटिया किस्म के सूटकेस, ब्रीफ केस या टिफ़िन, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों को रखने वाले जो डिब्बे मिलते हैं, जो टिफ़िन मिलते हैं, वो बहुत घातक हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए। हम पानी की बोतल समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पानी पी रहे हैं, लेकिन सावधान हो जाएं क्योंकि ये बोतल में रिसर्च हो चुकी है कि ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज इसका जो प्लास्टिक है वो सनलाइट के संपर्क में रहता है। ये बोतलें ट्रकों के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती हैं और वो सूरज की रोशनी के ज़रिए जो प्लास्टिक है वो पिघल कर उस पानी में आता है और वो कैंसर का कारक बन सकती हैं। तो ये मत माने, ये भरोसा मत करें कि वो बोतल बंद पानी आपके स्वास्थ्य के लिए हर तरह से अच्छा ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर भी रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आज जो प्लास्टिक पोल्यूशन का उद्देश्य यही था कि हम उसके खतरों को जानें,
प्लास्टिक के बारे में जाने, प्लास्टिक की कितना जो उसकी एप्लीकेशन है, जो उसका प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक के जो सिंथेसिस अलग अलग तरीके से की जा रही है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ आपको बता पाएँ, उसका छोटा सा आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता पाएँ और किस तरह से मरीन में जो पूरा कई लाख किलोमीटर समुद्र जो है वो पट गया है पॉलीथीन से, उसके बारे में हम आपको बता पाएँ और आपको जागरूक कर पाएँ कि हाँ कम से कम आप प्लास्टिक का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, उसका जो कचरा जो आप डिस्पोज करेंगे उसको वो आप सही तरीके से करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये गल के ख़त्म नहीं होता है, इसको ख़त्म होने में कई लाख बरस लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल जनरेशन की बात हो रही है, ये देहरादून में ही नहीं, अगले लेक्चर्स में हम और भी चर्चा करेंगे। भुवनेश्वर में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, NIT भुवनेश्वर में भी कार चलाई गई है, पॉलीथीन से भी वहाँ ईंधन बनाया गया है और इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग पॉलीथीन वेस्ट प्लास्टिक से सड़क बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये 2-3 उपयोग जो वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव को बखान कर रहे हैं, इसकी भी हम चर्चा आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। और मुझे लगता है कि आप अपने पढ़ाई के साथ सोसाइटी को भी एक बेहतर जागरूक बना सकते हैं, ख़ास तौर पर इस प्लास्टिक पॉलीथीन के पोल्यूशन को लेते हुए। और आपको करना यही है कि आपको सर्विस करने हैं, आपको डॉक्टर से बात करनी है, हॉस्पिटल्स में बात करनी है, जो कैंसर के रोगी नए नए आ रहे हैं निकल के, जो नियमित उस पॉलीथीन में चाय पीते हैं, जो पन्नी खतरनाक है, जो पन्नी जो पॉलीमर जिसका सीधा केमिकल्स जो है वो आपकी चाय में, गर्म चाय में मिल जाता है उस पन्नी से, और वो आप चाय रोज़ाना पी रहे हैं। तो ऐसे कितने रोगी हैं जो हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज कराने जा रहे हैं उस चाय को पीने के बाद। ये चर्चा यहीं ख़त्म ना हो, आप इसमें जुड़ें और कुछ इसी उम्मीदों के संग हम इस को यहाँ विराम देना चाहेंगे। Thank you, Dr. Nimish Kapoor. Your lecture was showing all the images and they were not meant to alarm or overwhelm us. They were also meant to indicate us, to drive us towards lifestyle and attitude changes. However, it was comforting to know that India is taking the prerogative and is having indigenous technologies for converting plastic, which is a pollutant, which is a menace, which is a monstrosity in itself, into a value-added fossil fuel. And with our coming lectures, we will be discussing and looking at more such research activities occurring in India and how we can also show light to the world regarding these. So I would thank Dr. Nimish Kapoor. Also, I would request the students to, you can look up this lecture at the YouTube channel, you can look up this lecture at our CEC website. Also, we would really welcome your comments, your suggestions, and in future if you want to have certain enrichment lectures like these, so please do give us your comments by email. Thank you.